تموتن الا وانتم مسلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر تاجدار نبوت و رسالت سیاح مکہ، وہ پیارا نبی جو اگر قطرے پہ نظر کرم کر دے تو سمندر بنا، وہ نبی کہ اگر ذرے کو نگاہ کرم سے دیکھ لے تو اس کو وسعتوں کا صحرا بنا دے، وہ نبی کہ اگر اپنی انگشت نبوت کو چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاند ہو ٹکڑے ہو جائے، وہ نبی جو کھارے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دے تو اللہ تعالیٰ کھارے کنویں کے پانی کو شیریں بنا دے، وہ نبی کہ جس دل میں وہ جگہ بنا لے وہ دل ایمان و عرفان سے منور ہو جائے، وہ نبی جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، جس نے گرو پڑوں کو اعلیٰ بنایا، جس نے رہزنوں کو رہبر بنایا، وہ نبی کہ اگر اس پہ کوئی امتی درود پڑھ دے تو اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ کتنا کمال والا ہے ہمارا نبی، مگر ہماری زبانیں ان پر درود پڑھنے سے قاصر ہیں۔ زیادہ چٹپٹی تقریر میں کرتا نہیں اور سیدھی سیدھی بات کروں گا، کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو چند باتیں بتا دوں جس سے مجھے اور آپ دونوں کو فائدہ ہو، اور ان محافل کے ان مجالس کا یہی مقصد ہے تاکہ امت محمدیہ کو کچھ باتیں بتائی جائیں اور اللہ کے رسول کے ذکر کو اور خدا کی عبادت کے شوق کو تازہ کیا جائے۔ وہ نبی کہ ہم اگر ایک مرتبہ اس پہ درود پڑھ دیں تو اللہ ہمارے 10 گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے 10 درجوں کو بلند کر دے، تو اسی نبی پاک پر دو لگا کر درود پاک پڑھے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ علامہ کافی مراد آبادی کہتے ہیں وہ اپنے لباس پر اترانے والے یاد رکھ، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تجھے سادہ سا کفن دیا جائے گا، اگرچہ ہم کتنی بڑی بلڈنگوں میں رہ لیں لیکن ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ ہمیں ان بلڈنگوں کو خیر آباد کہنے کے بعد ایک تنگ و تاریک قبر میں سونا ہے، اگرچہ ہم کتنے عمدہ کمروں میں رہ لیں لیکن ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ ہمیں ایک چھوٹے سے کمرے میں سونا ہے جس کا نام قبر ہے، ایک گھر میں جانا ہے جس کا نام قبر ہے، وہاں کوئی ہوا نہ ہوگی، وہاں کوئی اجالا نہ ہوگا، ہاں اگر تمہارے دل میں ایمان کا اجالا ہوگا تو اللہ قبر کو اجالے سے منور کر دے گا، یہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ اتنی بدعمالیوں کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر روشن ہو جائے گی؟ اتنی نمازیں ترک کرنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حشر بہتر ہو جائے گا؟ اللہ اکبر، توجہ سے تھوڑی دیر آپ میری گفتگو کو سننا۔ آپ نے زمانے کو پیغام دیا، کہتے ہیں دنیا والوں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کتنے خاندان آئے مٹ گئے، قومیں آئے مٹ گئی، شہنشاہ مٹ گئے، مگر جس چراغ کی لوگوں میرے سرکار نے 1400 برس قبل روشن کیا تھا وہ اسلام کل بھی روشن تھا، اسلام کا چراغ آج بھی روشن ہے اور مذہب اسلام کا چراغ کا قیامت روشن رہے گا۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا دین ہے، کہتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کفاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کپر رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود،
आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे, जानते हो आज मोमिन की मुसलमान की जिंदगी का मकसद क्या है? मुसलमान ने उस मकसद को भुला दिया जिस मकसद के लिए रब काबा ने हमें पैदा फरमाया था। जानते हो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे प्यारे, अगर आप अपने अतराफ में नजरें दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा इंसान सब कुछ कर रहा है, मगर जिसके लिए इंसान को पैदा किया उस इबादत से इंसान दूर हो गया है। अल्लाह अल्लाह, मैं हूँ आप, आज इंसान की जिंदगी का मामला ये है, वो सिर्फ 3 मकसदों के लिए जी रहा है, 3 चीजों के लिए जी रहा है। इंसान ये चाहता है कि उसकी औलाद की जिंदगी बेहतर हो जाए, इंसान ये चाहता है उसका मकान बेहतर हो जाए, इंसान ये चाहता है कि उसकी औलाद की जिंदगी और तालीम बेहतर हो जाए। अल्लाह अकबर। प्यारे, इस मुसलमान ने अपना मकान को उम्दा बना लिया, मगर वो इबादत न कर सका, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद न कर सका। जबकि हर मुसलमान जानता है सबसे बेहतर ज़बान वो है जो अल्लाह के जिक्र से तर रहती है। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के जिक्र से तर रहे, और सबसे बेहतर दिल वो है जो मोहम्मद अरबी की याद से खुल रहे। सबसे बेहतर हाथ वो है जो मोमिन की इज्जत को तार तार करने से महफूज है। मगर आज फसाद देखो, अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, और अपने काबा ने कुरान में फरमाया भी ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है, और जब तुम मरो तो मुसलमान होकर मरो। हालत क्या हो? हालत ये हो कि मुसलमान हो, मरना अल्लाह मुसलमान की हालत ये, हमने अपनी जिंदगी का मेयार ये बनाया हमारा मकान अच्छा हो, हमारे बच्चों का लिबास अच्छा हो, हमारे बच्चों की जिंदगी अच्छा हो। मकान को बनाने के चक्कर में इंसान नमाजों पे नमाजें छोड़ता रहा, फजर की नमाज हुई तो मुसलमान नमाज पढ़ने मस्जिद न जा सका। ये वही मुसलमान है जो दावा करता है कि मैं रसूलुल्लाह से इश्क करता हूँ। अरे प्यारे, ये कैसा इश्क है? अल्लाह की कसम, अगर अमल की बात की जाए ना तो मुसलमान सुनने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। शोहर की नमाज हो रही है तो मुसलमान अपने कारोबार में लगा हुआ है। मुस्लिम कब कब ख्वाब गफलत से जागोगे, कब कब मसाजिद को आबाद करोगे, कब कब हमारे दिल में मदारिस की मोहब्बत पैदा होगी। इसलिए कि याद रखो, ये जो मकान है ना ये दुनिया में रह जाएंगे, ये जो इमारतें हैं ये दुनिया में रह जाएंगी, जो तुम उम्दा उम्दा लिबास पहनते हो ये दुनिया में रह जाएंगे, तुमने जो तिजोरियों को भर दिया है वो दुनिया में रह जाएगी। खुदा की कसम, दुनिया के लिए सुखों को भागते हो, दुनिया कमाने के लिए अपने सर को तोड़ कर रख देते हो। दुनिया कमाने के लिए तुमको ये मालूम नहीं है कि इस्लाम किसको कहते हैं। याद रखो, जिस मकान को तुमने बनाया एक एक छोड़ना पड़ेगा, जिस औलाद को तुमने बढ़ाया एक एक छोड़ना पड़ेगा। अगर मरने के बाद आखिरत में कोई काम आएगा तो मस्जिदों की नमाजें काम आएगी, रसूलुल्लाह से मोहब्बत काम आएगी। इसलिए कि याद रखो, जिस बंदे ने अपनी परेशानी को सजदे में झुका दिया तो अपने काबा को सजदा करना बंदे का काम है, वो इबादत के बदले में जन्नत देना परवरदिगार आलम का काम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जनाब मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने तमाम जिंदगी क्यों गुजार दी? मकान अच्छा बन जाए, लिबास उम्दा मिल जाए, बच्चों की तालीम अच्छी हो। मगर याद रखो मेरे प्यारे, आप चाहे कितना भी दौड़ ले, आप चाहे कितना भी भाग ले, अल्लाह ने जो नसीब में लिखा है वही मिलेगा। वो बंदा बड़ा प्यारा है जो तिजारत भी करे और 5 वक्त मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़े। वो बंदा बड़ा प्यारा है जो अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी दे और बच्चों को वो किरदार अदा करे कि जब फजर की अजान हो तो बच्चा मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़े, वापस आने के बाद घर में कुरान पाक की तिलावत भी करे। चलो मान लिया हमने मकान भी अच्छा बना लिया, हमने लिबास भी अच्छा बना लिया, लेकिन एक दिन वो भी आता है कि जिस दिन इंसान की सांसों की थोक टूट जाती है, अपने पराए हो जाते हैं, वो मकान जिसको बनाया था आज बंदर छोड़ने पे मजबूर है। इसलिए कि मौत ने अपनी आगोश में ले लिया है। आली जनाब मौलाना तानी
शायर के वालिद साहब को आप बोले, किसको मालूम था कि मौत अपने शिकंजे में कस लेगी, मगर याद रखो जब मौत आती है ना तो मोहब्बतें तब तोड़ देती है। जब मौत आती है ना तो दुनिया के रिश्तों में ताकत नहीं है जो मौत के पंजों से किसी को बचा सके। एक दिन वो भी आएगा मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, कि जिस मकान के लिए आपने नमाजें छोड़ी थी उस मकान से तुमको बेदखल कर दिया जाएगा, उस मकान की तरफ जहां हमें हमेशा रहना है, क़यामत रहना है। अल्लाह अल्लाह, जब इंसान का जनाजा घर में पड़ा है, बच्चों से रिश्ता टूट गया इसलिए कि मौत आ गई है, मकान से रिश्ता टूट गया इसलिए कि मौत आ गई है, माँ से रिश्ता टूट गया इसलिए कि मौत आ गई है, बीवी से रिश्ता टूट गया इसलिए कि मौत आ गई है। जिनके लिए तमाम जिंदगी गुजारी वही घर वाले कहते हैं जल्दी से लेकर चलो, दफना दो, इसलिए कि याद रखो जितनी जल्दी मदफून को दफन कर दिया जाए इसके लिए इतना ही हम में बेहतर हुआ कर। बेशक सुभान अल्लाह बहुत हो बनाया, नमाज नहीं पढ़ी इसलिए कि अगर तिजारत नहीं करूंगा खाली दीनदार बनूंगा तो मेरे बच्चों को मिलेगा। लोगों की सोच ये बन गई है। लेकिन मकान छोड़ा, अल्लाह अल्लाह वो माँ जो बेटे से मोहब्बत करती थी जारो कतार रो रही है और कहती है लोगों मेरे बेटे को मुझसे जुदा ना करो, मगर को दुनिया वालों सुनो, किसी माँ की मोहब्बत के आंसुओं में इतनी ताकत नहीं है जो अपने बेटे की मज्जत को रोक सके। वो सोचा जिसके साथ जिंदगी गुजारने का वादा किया था जारो कतार रो रही है, कहती है लोगों मेरे शौहर को मुझसे जुदा ना करो, मगर किसी बीवी की आंखों में वो आंसू नहीं है जो अपने शौहर के जाते जनाजे को रोक ले। अल्लाह अकबर, आज तमाम के तमाम हरम टूट गए। जिस खानदान पे इतराता था उस खानदान में साथ छोड़ दिया, जिस औलाद में मुतकब्बिर था उस औलाद में साथ छोड़ दिया। ऐसे वक्त में जब कुछ काम नहीं आएगा तो वो अमल काम आएंगे जो बंदे ने दुनिया में अच्छा अमल किए। लेकिन आज परवाह नहीं है अमल करने की, परवाह नहीं है नमाज पढ़ने की। लोग ये चाहते हैं कि नमाज पढ़नी ही ना पड़े जन्नती बन जाए। लेकिन अल्लाह फरमाता है लोगों अगर नेक अमल करोगे तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए ऐसे महल तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, मगर अमल की जरूरत है। अल्लाह पर जानते हो मेरे प्यारे, आओ मैं अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, आप तवज्जो से सुने। हम आजाद हैं, हमारी आजादी का मतलब ये है हम जब चाहे इबादत करें, जब चाहे कुरान पढ़ें, जब चाहे कलिमा पढ़ें। मगर मेरे प्यारे आओ सुनो, अल्लाह अल्लाह, एक इंसान बाजार में गया, जाने के बाद उसको एक गुलाम की हाजत थी, मचल कर बोलते सुभान अल्लाह। कैसे कैसे लोगों को अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा किया। मेरे सरकार फरमाते ऐ लोगों वो में बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा ताजिर रहता था, इसकी तिजारत का आलम ये कि बहुत बहुत दूर तक इसकी तिजारत के चर्चे थे, माल भी था, दौलत भी थी, लोगों की मदद भी करता था, मगर बदकिस्मती ये थी कि अल्लाह ने इसको ईमान से महरूम रखा था। और सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत। सब जानते हैं माल थी ईमान नहीं था, दौलत थी ईमान नहीं था, औलाद थी ईमान नहीं था। ये आपकी इबादत करता था, आपको पूजा करता था, मजहब के तौर पे मजूसी था। आप ये हदीस पाक सुने सीना मदीना बन जाएगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो थोड़ी देर माहौल बनाए, सब कुछ था मगर ईमान की दौलत से महरूम था। अल्लाह अकबर, आपकी इबादत करता, मजहबी तौर पे मजूसी था। रब्बे काबा ने इसे 2 बेटे अता किए। जब इसके 2 बेटों ने होश संभाला, बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो क्या देखा कि इनका बाप भी आपकी इबादत कर रहा है, खानदान वाले भी आपकी इबादत कर रहे हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं तमाम के तमाम रिश्तेदार आपकी इबादत कर रहे हैं। अब बच्चा जो घर का माहौल देखता है उसी माहौल में ढल जाता है। जब इन दोनों बच्चों ने देखा ना कि मेरा बाप भी आपकी इबादत कर रहा है, खानदान वाले भी आपके पुजारी है, रिश्तेदार भी आपके पुजारी है, तो इन दोनों ने आपकी इबादत करना शुरू कर दिया। एक दिन नहीं, एक
साल नहीं बल्कि मुसलसल 70 सालों तक ये आग की इबादत करते रहे। अल्लाह अकबर। इनमें से जो छोटा भाई था ना, इत्तेफाक से एक दिन वो जंगल में किसी काम से गया। अल्लाह अकबर कि अल्लाह के नेक बंदे से इसकी मुलाकात हो गई। अल्लाह अल्लाह, वो बंदा रब्बे काबा को सजदे कर रहा है। कितना मुअज़्ज़ज़ बंदा होगा जो जंगलात में अल्लाह की इबादत कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, इस बंदे ने जब उसको इबादत करते देखा तो पूछा, प्यारे ये तो बता क्या कर रहा था? तो अल्लाह वाले ने कहा, मैं अपने रब्बे काबा की इबादत कर रहा हूँ। उसने कहा, ये तो बताओ तुम्हारा रब कौन है? तो अल्लाह वाले ने कहा, मेरा रब वो है कि जिसने तमाम कायनात को पैदा किया। दोनों में गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ गया। उसने कहा, प्यारे ये बता तू किसकी इबादत करता है? तो उसने कहा, मैं जिसे खुदा मानता हूँ वो आग है, मैं आग को पूजता हूँ और आज से नहीं बल्कि 70 साल से मैं आग की इबादत कर रहा हूँ। तो अल्लाह वाले ने कहा, अरे अगर इबादत करनी है तो आग की क्यों करता है? रब्बे काबा को सजदा कर, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए कि अल्लाह जब किसी पर एहसान करता है तो उसके लिए ईमान की राहों को हमवार कर देता है। जब इसने अल्लाह वाले का पैगाम सुना, अपने घर को वापस आया और आने के बाद अपने भाई से कहा, प्यारे मेरी एक इंसान से मुलाकात हुई जो ये कहता है कि अगर इबादत करती है तो आपकी इबादत ना करिए, मखलूक है, इसे पैदा करने वाले खालिक की अल्लाह की इबादत कर। और उसने मुझसे ये भी कहा है कि 70 साल से आग की इबादत कर रहा है। अगर इतना ही तुझको एतमाद है तो आग में हाथ डाल, अगर वो खुदा नहीं होगी तो जला देगी। और खुदा की शान ये है कि वो जलाता नहीं है बल्कि अपने इबादत गुजार बंदों को आग से बचा लेता है। जैसे कि आतिश नमरूद से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाया। अल्लाह अकबर। जब इन दोनों भाइयों ने आग में हाथ डाला आग का इम्तिहान लेने के लिए, तो आग ने उन दोनों को जला दिया। दोनों पुकार उठे, ये हमारा खुदा नहीं हो सकता। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर हमारे पास थोड़ी सी परेशानी आ जाए, कारोबार हमारा कम चलने लगे, हम जमाने से कहते हैं कारोबार में बड़ी दिक्कत है, खर्चे में बड़ी परेशानी है। अगर बीमारियां घेर ले, पड़ोसी से तो कहेंगे, रिश्तेदारों से तो कहेंगे, दोस्तों से तो कहेंगे, मगर उस मालिक की बारगाह में अर्ज नहीं करेंगे जो बीमारियों से शिफा देने वाला है। खुदा की कसम याद रखो ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें अल्लाह अकबर बीमारियां घेर ले तो दुनिया वालों के सामने ना रो, बल्कि अल्लाह के सामने अपने टुकड़ों को सुना दो, क्योंकि रब्बे काबा की शान ये है, अगर वो चाहे तो पल भर में बीमारी दे दे, अगर चाहे तो पल भर में बीमारी से शिफा। दुनिया के सामने हम रोते हैं, भाई कारोबार खराब है, भाई घर में बीमारियां हैं। काश हमने अपने अल्लाह के सामने हाथों को उठाकर गुजारिश की होती तो परवरदिगार आलम बीमारियों से शिफा अता फरमा देता। मगर जिस कौम ने नमाजों को पढ़ना छोड़ दिया वो रब्बे काबा को सजदे क्या करेंगे? वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद क्या करेंगे? हमारा आलम ये 5 वक्त की अजान मस्जिदों में हो जाती है, मगर हमसे इतना नहीं होता कि अपने घर से निकलकर रब्बे काबा की बारगाह में सजदा करते। ऐ मोमिनो, नमाज हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? कुरान हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? मेरे प्यारे, आखिर मरना है, जवानियों को मिटना है, जिंदगियों को खत्म होना है। 60 साल जिंदगी के लिए इतना कुछ, और जो आखिरत में हमेशा रहना है उसके लिए इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ने तैयार नहीं, कुरान पढ़ने तैयार नहीं, रोजे रखने तैयार नहीं, ज़कात देने तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। इन दोनों भाइयों ने कहा, चलो असली खुदा की तलाश करें, मालिक हकीकी की तलाश करें। ये दोनों भाई अपने घर से निकले और लोगों से पूछना शुरू किया, ऐ लोगों ये तो बताओ आखिर रब कौन है, मालिक हकीकी कौन है? तो किसी ने कहा, प्यारे अगर तुम्हें इबादत करती है तो सूरज की इबादत करो, तुम इससे जिंदगी गुजारते हो, रोशनी लेते हो। मगर दोनों भाइयों ने कुछ यूं कहा था कि जो रात के अंधेरों में गायब हो जाए वो हमारा मालिक की हकीकी नहीं हो सकता। किसी ने कहा, प्यारे अगर तुम्हें इबादत करती है तो उसकी करो जिसको जमाना चांद कहता है। दोनों भाइयों ने कहा, जो दिन के उजालों में दम तोड़ दे वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। ये दोनों आगे बढ़े। प्यारे कितने खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत से नवाजा है। अरे कितने लोग ऐसे आए कि पत्थर पर पटक पटक के मर गए, मगर उन्हें खुदा की पहचान नहीं हुई। लोग पैरों को सजदा कर
कर के मर गए, मगर उन्हें खुदा की पहचान नहीं हुई। हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं, जब पैदा हुए तो मोमिन के घर में, बड़े हुए तो मोमिन होकर जिंदगी गुजारी तो मोमिन होकर। एक मोमिन की शान ये है, अगर दुख में रहे तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और अगर सुख में रहे तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। कभी सोचा तो करें, कितने आए चले गए मगर अल्लाह उनको ना मिले। उनको पता नहीं चला कि रब की जात क्या है। उन्होंने अल्लाह को एक माना ही नहीं। पत्थरों के सामने सर रगड़ रगड़ के मर गए, पेड़ों के सामने सजदे कर कर के मर गए, पानी को माबूद बना बना के मर गए। कितने खुशकिस्मत है हम कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। लेकिन हम हैं कि ईमान की दौलत को पहचानने तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि बगैर नमाज पढ़े बेड़ा पार हो जाए। मुसलमानों, इस भरोसे में ना पड़े रहना, अपने आप को धोखा ना देना। लोगों ने कहा प्यारे खुदा मानना है तो शजर को खुदा मानो। कहने लगे जिसको इंसान काट डाले वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। कि इत्तेफाक से खुश नसीबी से उसी अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई। अल्लाह वाले ने कहा प्यारे अगर तुम्हें माबूद मानना है ना तो उसको मानो जिसने कायनात को पैदा किया है। अल्लाह वाले ने उनको तलकीन की, ये दोनों कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। हम ये कहते हैं हम परेशानियों में है, खुदा की कसम जब इन दोनों भाइयों ने कलमा पढ़ा, ये अपने घर को पलटे ना। अपने घर जाने के बाद इन्होंने मुसल्ले को बिछा दिया। मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुनना और सोचना कि हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो एक मुसलमान की जिंदगी हो सकती है। हमने जो अपनी जिंदगी के लम्हात ज़ाये कर दिए कि एक मुसलमान की शायान शान है। अल्लाह की कसम दोनों अपने घर को पलटो। वो जो इबादत करते थे आग की, अब उन्होंने आपको ना पूछा बल्कि मुसल्ला बिछाया और परवरदिगारे आलम की बारगाह में पेशानी को टेक। जब इन्होंने अपने सर को सजदे में रखा तो इनके बाप ने गुस्से में कहा ओ मेरे बेटो, मेरे घर में अल्लाह को मानने वालों के लिए कोई जगह नहीं। अगर तुमने इस अकीदे को नहीं छोड़ा तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अगर तुमने इस मजहब को नहीं छोड़ा तो तुमसे कता ताल्लुक कर दूंगा। अगर तुमने इस मजहब को नहीं छोड़ा तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अगर तुमने इस मजहब को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें रिश्तेदारों से दूर कर दूंगा। अल्लाह अकबर। जानते हो बड़ा बेटे ने सोचा अगर मैंने इस मजहब को ना छोड़ा, अपने बाप का दुश्मन बन गया तो मुझे दौलत से हाथ धोना पड़ेगा, रिश्तेदारों से हाथ धोना पड़ेगा, घर वालों से हाथ धोना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, इसने मजहब इस्लाम को छोड़ा। ये दोबारा से मुर्तद होकर काफिर हो गया। मगर इस ताजिर का जो छोटा बेटा था इसने अपने बाप से कहा ऐ मेरे पापा, तू ये कहता है अगर मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा तो तू मुझे जायदाद से बेदखल कर देगा, तू मुझसे कदा ताल्लुक कर देगा। ऐ मेरे बाप सुन, तेरी जायदाद तुझे मुबारक, तेरे रिश्ते तुझे मुबारक, इसलिए कि मुझे अल्लाह ने वो तौफीक दी है। मैं जायदाद को छोड़ सकता हूँ, रिश्तेदारों को छोड़ सकता हूँ, अपनी माँ को छोड़ सकता हूँ, अपने बाप को छोड़ सकता हूँ, अपने माल को छोड़ सकता हूँ, मगर अल्लाह का दिया हुआ ईमान नहीं छोड़ूंगा। अब तो मेरी शान ये है, मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा भी होगा तब भी ये पुकारूंगा। अगर जीऊंगा तो खुदा के लिए और इंतकाल करूंगा तो परवरदिगार आलम के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले किराम। अल्लाह अकबर। सुन्नी मुसलमानों, जानते हो मेरे प्यारे, अल्लाह अकबर इसने कहा जीऊंगा तो खुदा के लिए, बनूंगा तो खुदा के लिए। ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बोलना, मैं भी और आप भी, कि हम इसलिए जी रहे हैं कि जिएंगे तो खुदा के लिए, मरेंगे तो खुदा के लिए। हमारी कौम की पस्ती का आलम ये, हमारी कौम की जिल्लत का आलम ये, सियासत के लिए भाई को छोड़ देती है, सियासत के लिए रिश्तेदार को छोड़ देती है, सियासत के लिए अपनों का खून बहा लेती है। अल्लाह अल्लाह, मगर याद रखो ये सियासत काम में आने वाली नहीं है, ये दुनिया काम में आने वाली नहीं है। अरे मोमिने कामिल वो है अगर दोस्ती करे तो अल्लाह के लिए, और अगर किसी से दुश्मनी करे तो परवरदिगार आलम के। मगर हम में से एक भी ऐसा नहीं जो अल्लाह के लिए दोस्ती करता हो, अल्लाह के लिए दुश्मनी करता हो। हम तो जिए जा रहे हैं। उसने कहा मेरे बाप मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो मेरा परवरदिगार आलम काफी है। सुभान अल्लाह। इसने जब इतना कहा
तो बाप ने इसको जायदाद से बेदखल कर दिया, थोड़ा सा अनाज दिया, देने के बाद कहा ऐ मेरे बेटे तुझे मेरे घर में रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे घर में तेरे जैसे मसलक मजहब वालों की कोई जगह नहीं। अल्लाह अकबर। इसने रब्बे काबा को दिल में बसा लिया था, इसने ईमान की मारिफत को समझ लिया था, इसने ईमान की ताकत और बुलंदी को समझ लिया था। इसने अपने बाप से वो अनाज लिया, लेने के बाद जब इसने अपने घर को छोड़ा ना तो इसकी ज़ौजा ने इसका रास्ता रोक लिया। वो जानते उसने क्या कहा था, ऐ मेरे शोहर तू मुझे छोड़कर कहाँ चला है, क्या तुझे मालूम नहीं है मैं तेरे रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हूँ। ऐ मेरे शोहर तू जहाँ जाएगा तेरी ज़ौजा तेरे साथ वहाँ जाएगी। अल्लाह अल्लाह। तो इसके शोहर ने कहा था ऐ मेरी ज़ौजा जिस बाप की बेटी है वो बड़ा मालदार था, तूने कभी दुख नहीं देखा, तूने कभी परेशानी नहीं देखी। ऐ मेरी ज़ौजा तू मेरे घर में रही, मेरा बाप बड़ा मालदार था, तूने अच्छा खाया अच्छा पहना, लेकिन सुन आज मैं जिस रास्ते पे चला हूँ वो परवरदिगार आलम का रास्ता है, और ये वो रास्ता है कि तुझे इस रास्ते पे चलकर भूखा भी रहना पड़ेगा, तुझे इस रास्ते पे चलकर प्यासा भी रहना पड़ेगा। तमाम दुनिया की मुश्किलें हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, दुनिया राहों में कांटे बिछाएगी। तो इसकी ज़ौजा ने कहा था ऐ मेरे शोहर सुन ले, अगर तू कांटों पे चलेगा तो तेरी ज़ौजा कांटों पे चलेगी, अगर तू दुख में रहेगा तो तेरी ज़ौजा दुख में रहेगी। इसलिए कि याद जिस अल्लाह का कलमा तूने पढ़ लिया है उसी अल्लाह का कलमा तेरी ज़ौजा ने पढ़ लिया है। अब मेरा ईमान ये है दुनिया नाराज हो तो हो, मेरा नाराज ही रहे, इसलिए कि ईमान वालों को दुनियादार की नहीं बल्कि परवरदिगार की जरूरत है। बेशक सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह। ने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं बल्कि मुझे तो मेरे परवरदिगार की जरूरत है। बोलो सुभान अल्लाह। दो छोटे छोटे बच्चे थे, इसने अपनी ज़ौजा को लिया, बच्चों को लिया, थोड़ा सा अनाज लेने के बाद अपने घर से निकल गया। अल्लाह अकबर। इसने जंगल में जाकर एक झोपड़ी बना ली, एक कुटिया बना ली। नौकर नहीं थे, चाकर नहीं थे, दौलत नहीं थी, मगर सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत करते। रब्बे काबा ने इनकी झोपड़ी को जन्नत बना दिया, इसलिए कि जो दिल से अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह दुनिया ही में उनकी जिंदगी को जन्नत बना देता। उसके लिए दो जन्नत है, एक दुनिया में एक आखिरत में। उनकी जिंदगी का सुकून जन्नत की तरह होता है। अल्लाह अकबर। सुबह को इबादत करते, शाम को इबादत करते, थोड़ा सा अनाज था चंद दिनों में खत्म हो गया। इसकी ज़ौजा ने कहा ऐ मेरे प्यारे हमारे सामने तो कुछ भी मुश्किलें नहीं, हम उम्दा लिबास पहनते हैं, उम्दा खाना खाते हैं। इसकी ज़ौजा ने कहा था ऐ मेरे शोहर याद रखो इबादत करना अच्छी बात है, मगर अपने बच्चों को इसके हलाल खिलाना ये भी अच्छी बात है। ऐ मेरे शोहर घर का अनाज खत्म हो चुका है, अगर सिर्फ इबादत करोगे तो बच्चों को क्या खिलाओगे? जाओ और जाने के बाद कुछ कमा कर लाओ ताकि तुम अपने बच्चों को खाना खिला सको, खुद भी शिकम शेर हो सको, अपनी ज़ौजा को खाना खिला सको। अल्लाह अल्लाह। इतने बड़े बाप का बेटा सिर्फ मोहब्बत खुदा की बुनियाद पे आज इस नौबत को पहुंच गया है कि इसके बेटों ने अल्लाह अकबर सुबह से कुछ नहीं खाया, इसने अल्लाह का नाम लिया, एक थैला उठाया, उठाने के बाद ये मजदूरों की मंडी में जाकर खड़ा हो गया। मगर इसके मुकद्दर को सलाम, जब ये अपने घर से निकला तो रब्बे काबा ने ऐलान फरमाया फरिश्तों तैयार हो जाओ, मैं अपने बंदे का इम्तिहान। और जनाब जिसका इम्तिहान रब ले वो बंदा कितना अजमत वाला होगा, कितनी शान वाला होगा, उसकी अजमतों का आलम क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इम्तिहान लेंगे। अल्लाह की कसम मोमिनो सच्चे मुसलमान बनो, नाम के ना बनो, खाने के ना बनो। अगर मुसलमान बनना है तो चेहरे से मुसलमान बनो, लिबास से मुसलमान बनो, ज़बान से मुसलमान बनो, इबादत के जरिए मुसलमान बनो। अल्लाह अकबर। रब्बे काबा ने फरमाया ऐ फरिश्तों मैं अपने बंदे का इम्तिहान लूंगा। अल्लाह अकबर। ये मंडी में जाकर खड़ा हो गया। जानते हो इससे
ज्यादा कमजोर लोग काम पर चले गए, मगर इसको किसी ने काम के लिए ना पूछा। वो लोग जो इससे उम्र में कम थे काम पर चले गए, मगर इससे किसी ने काम को ना पूछा। सुबह से दोपहर हो गई, इस अल्लाह के बंदे को काम ना मिला। शाम दोपहर से शाम हो गई, अल्लाह के बंदे को काम ना मिला। जब अल्लाह सूरज डूब गया, रात के अंधेरे दिन के उजालों पर गालिब आ गए, अल्लाह अकबर, इसने अपने थैले से मुसल्ला निकाला, वुजू किया और सहरा में जाके ये अल्लाह का बंदा इबादत करने लगा। अल्लाह अकबर, सर को सजदे में रखने लगा, रब्बे काबा की तारीफ को तौसीफ करने लगा। जब रात का 30वां पहर आया तो इसने अपने हाथों को उठाया, कहने लगा, बोला, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, मगर रब्बे काबा, मुझे अपने बच्चों की भूख की फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरा ईमान ये है, तू अगर सुख में राजी है तो तेरा बंदा सुख में राजी है, तू अगर दुख में राजी है तो तेरा बंदा दुख में राजी है। सुभान अल्लाह। जनाब कितना पुख्ता ईमान होगा। कहता मौला तू जैसे राजी, तेरा बंदा इस हाल में राजी। सुभान अल्लाह। जानते हो मेरे प्यारे, जब ये इबादत करने के बाद, दुआ करने के बाद घर पहुंचा तो ये समझ रहा था कि ज़ौजा को क्या जवाब दूंगा। घर में बच्चे भूखे हैं, ज़ौजा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, मगर जब इसने दरवाजा खटखटाया तो इसकी ज़ौजा ने इसको मुस्कुराकर सलाम किया। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब आदमी नेक होता है तो अल्लाह इसके तमाम घर को नेक बना देता है। हम दूसरों में कमियां निकालते हैं, औलाद को डांटते हैं, मगर कभी सोचा कि हमने वाकई अपने बच्चों को ऐसे पाला जो इस्लाम का तकाजा था? अगर कौम मुस्लिम के लोगों ने अपने बच्चों को यूं पाला होता जो इस्लाम का तकाजा है, तो क्या हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ अपनी जिंदगी वाबस्ता करती? आज हमारी कौम की बेटियों का आलम ये, उन्हें परवाह नहीं है कि हमसे जिंदगी वाबस्ता करने वाला मोमिन है कि गैर मुस्लिम। आप देख ले दौरे हाजिर का आलम क्या है। हमारी बेटियों ने हमारी इज्जतों को इसलिए पामाल किया, इसलिए कि मुसलमान ने उसे मुसलमान की बेटी की तरफ पाला। अगर हम अपने घर की बेटी से पूछ ले, बता तो सही फातिमा की सीरत क्या है, तो किसी को मालूम नहीं। बेटों से पूछ ले, बता तो सही मौला अली की सीरत क्या है, तो बेटों को मालूम नहीं। और जिस कौम के बेटे अपने बुजुर्गों से कट जाते हैं वो कौम जलील ख्वार हो जाती है। इसलिए मुसलमान को कोई पूछने वाला नहीं, मुसलमान की कोई इज्जत करने वाला नहीं। मैं जानता हूं मेरे जुमले कड़वे हैं, मगर प्यारे इन बातों पे गौर किया करो। आखिर क्या वजह है कि हमारे बच्चे हमारी सुनने तक जाते हैं? हमारे घर के माहौल का आलम ये लगता नहीं कि ये घर मुसलमान का घर है। मेरे प्यारे, इनकलाब पैदा करो अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान को। इसकी ज़ौजा भूखी थी, भूखी, मगर इसने अपने शोहर के चेहरे को देखा तो कुछ नहीं पूछा, बल्कि मुस्कुरा कर सलाम किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह हर औरत को मुसलमान की ऐसा बना दे तो हमारी जिंदगियां कामयाब हो जाएं। जानते हो इसकी ज़ौजा ने पूछा है, मेरे शोहर तुम मजदूरी पे गए थे, कुछ लेकर नहीं आए? अल्लाह अकबर। तो ये कहता है, प्यारी, मैं जिस मालिक की मजदूरी कर रहा हूँ उस मालिक की शान ये है, जब वो देगा तो हमसे संभलेगा नहीं। अल्लाह अल्लाह। दूसरा दिन हुआ, ये फिर अपने घर से थैला लेकर निकला, ये वही चौराहे पर जाकर खड़ा हुआ। कमजोर चले गए, मगर इसे कोई भी काम पे लेकर नहीं गया। मजदूर सब जाते रहे, ये अल्लाह का नेक बंदा उसी जगह खड़ा रहा। छोटे चले गए, मगर इसे कोई काम पर लेकर नहीं गया, इसलिए कि रब्बे काबा इसका इम्तिहान ले रहा था। हम कहते हम तकलीफ में हैं, अरे इसकी तकलीफ को, इसकी मुसीबतों को महसूस तो करो। इसके बच्चे भूखे हैं, मगर किसी के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं है। इसके बच्चे भूखे हैं, मगर रब के सिवा किसी से कहना गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर। दूसरे दिन का सूरज डूब गया, इसने फिर मुसल्ला निकाला, वुजू किया, करने के बाद इसने सहरा के सीने पे अपने मुसल्ले को बिछा दिया और कहता, ऐ खालिक के कायनात, तू जिस हाल में राजी है तेरा बंदा उसी हाल में राजी है। तू अगर दुख में रखेगा तो तेरा बंदा दुख में राजी है, तू अगर सुख में रखेगा तेरा बंदा सुख में राजी है। अल्लाह अकबर। दुआ करने के बाद ये अपने घर की जानिब चला, इसने घर के दरवाजे पे दस्तक दी तो इसकी ज़ौजा ने मुस्कुराकर इसको सलाम किया। सुभान अल्लाह। और कहती है, मेरे शोहर आज 2 दिन हो चुके हैं कि अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर नहीं आए। मजदूरी पर गए थे, कुछ बदले में लेकर नहीं आए।
तो उसने कहा मैं जिस मालिक की मजदूरी कर रहा हूं उसकी शान ये है जब देगा तो हमसे संभलेगा नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तीसरा दिन हुआ, जब ये तीसरे दिन अपने घर से निकला ना तो इसके छोटे बेटे ने अपने बाप के दामन को थाम लिया और रोने के बाद कहता है मेरे बाबा आज मुसलसल 3 दिन हो चुके हैं तेरे बेटे ने कुछ खाया नहीं है। ऐ मेरे बाप मुझसे बोला नहीं जाता, ऐ मेरे बाबा मुझसे चला नहीं जाता, मेरी आंखों के तले अंधेरा छा जाता है। ऐ बाबा एक बात तो बताओ, या तो हमें अनाज लाकर खिला दो वरना अपने हाथों से हमारी जिंदगी को खत्म कर दो। ऐ मिल्लते मुहम्मदिया के प्यारे रसूल मुसलमानों, आप तवज्जो तो करें, एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसके बेटे ने कहा होगा बाबा या तो कुछ ला कर खिला दो या अपने हाथों से मेरी जिंदगी को खत्म कर दो। अल्लाह की कसम इस बाप ने आसमान की जानिब देखा, अल्लाह अल्लाह और अल्लाह का नाम लेकर ये अपने घर से निकला। निकलने के बाद ये मजदूरों के चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया। इससे कमजोर मजदूरी पे चले गए मगर इसे कोई मजदूरी पर लेकर न गया, इससे छोटे छोटे चले गए मगर इसे कोई मजदूरी पे लेकर नहीं गया, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका इम्तिहान ले रहा था। अल्लाह अल्लाह तीसरा दिन है, न इसके बच्चों ने कुछ खाया है न इसकी सौजा ने कुछ खाया है। अगर पड़ोसियों से सवाल करते तो पड़ोसी कहते थे अगर इस्लाम छोड़ दोगे तो हम तुम्हें अनाज भी देंगे, हम तुम्हें रुपया पैसा भी देंगे। तो इसकी सौजा ने कहा था ऐ लोगों तुम इस्लाम छोड़ने की बात करते हो, हम जान तो दे सकते हैं मगर अल्लाह का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। अल्लाह की कसम कैसा ईमान इनके पास हो, बेटा है तो पक्का मोमिन, बीवी है तो पक्की मोमिन। तीसरे दिन सुबह से शाम तक खड़ा रहा, कोई मजदूरी पर लेकर नहीं गया। घर में फाका है मगर ईमान बड़ा मजबूत है, अल्लाह पे भरोसा बड़ा पक्का है, रब्बे काबा को सजदा करने में बड़ा लुत्फ आता है। अल्लाह अकबर, इसको कोई मजदूरी पर लेकर नहीं गया। तीसरे दिन इसने वुजू किया, सहरा के सीने पे मुसल्ला बिछा दिया, इबादत करता रहा। जब रात का तीसरा पहर आया ना तो इसकी आंखों में आंसू आ गए और इसने अपने हाथों को उठाकर रब्बे काबा की बारगाह में अर्ज किया था ऐ मौला मैंने तेरे दीन के लिए अपने बाप को छोड़ दिया मगर मैंने अल्लाह तुझसे कभी शिकवा न किया। मौला मैंने तेरी मोहब्बत में मालो दौलत को ठुकरा दिया, इसलिए कि मेरे लिए मालो दौलत से ज्यादा तेरी मोहब्बत है। परवरदिगार आलम मेरी माँ ने मुझसे मुंह मोड़ लिया मगर मैंने शिकवा न किया, मेरी रिश्तेदारों ने मुझसे कटा ताल्लुक कर लिया मगर मैंने शिकवा न किया। या रब्बे काबा आज मैं 3 दिन से भूखा हूँ मगर मुझे अपनी भूख की कोई फिक्र नहीं है। मौला चाहे तू भूखा रख, चाहे तू वीजा दे दे या रब्बे काबा, मगर आज जब मेरे बेटे ने मेरे दामन को थामा था और रोकर मुझसे कहा था ऐ मेरे बाबा या तो मुझे रोजी लाकर खिला दो या तो मुझे अनाज लाकर खिला दो वरना अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। ऐ रब्बे काबा मुझसे मेरे बेटे के आंसू दे के नहीं गए। परवरदिगार आलम तू रहीम है, रहम फरमा, मेरे बच्चों को इसके हलाल अता फरमा दे। तू करीम है, करम फरमा, मेरे बच्चों को इसके हलाल अता फरमा दे। मौला तू तो वो है जिसने आदम की तौबा को कबूल किया था। मौला तुझे आदम का वास्ता मेरे बच्चों को इसके हलाल अता फरमा दे। तू तो वो है जिसने नूह की कश्ती को झूठिए पहाड़ पे लगाया था। तुझे नूह अलैहिस्सलाम की नबूवत का वास्ता मेरे बच्चों को इसके हलाल अता फरमा दे। खुदा की कसम सारों पता हो रहा है, इसकी आहों का आलम यह है जब ये रोता है ना तो आसमान के मलक कहते हैं मौला इसकी तौबा को, इसकी दुआ को कबूल फरमा दे। अल्लाह इसकी दुआ का आलम यह है, हमारे कलेजे फटे जाते हैं, हमने आबिद तो बड़े देखे इसके जैसा आबिद न देखा, हमने साहिब तो बड़े देखे इसके जैसा साहिब न देखा, हमने साबित तो बड़े देखे इसके जैसा साबित न देखा। जब इसके दिल से आह निकली और आदम का कलेजा चिरा, रब्बे काबा ने इसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। अल्लामा इकबाल कहते हैं दिल से जो आह निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कहता है मौला तू जिस हाल में रखे तेरा बंदा उस हाल में राजी, मगर मौला तुझे तेरी रहमतों का वास्ता
میرے بچوں کو اس کے حلال عطا فرما۔ رب کعبہ کو اس پر پیار آ گیا، رب کی رحمتوں کو اس پر پیار آ گیا۔ ادھر یہ رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، ادھر اس کے دروازے پہ کسی نے آ کر دستک دی۔ سبحان اللہ، زور سے بولے، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مچل کر کہہ دے سبحان اللہ۔ ادھر یہ دعائیں کر رہا ہے، ادھر کسی نے آ کر دستک دی۔ جب اس کی زوجہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایسی جماعت کو پایا جس کے چہروں کا عالم یہ کہ اتنے نورانی چہرے اس سے پہلے اس کی زوجہ نے کبھی دیکھے نہ۔ ان کے چہروں کا عالم یہ جیسے کہ 14ویں رات کا چاند، ان کے لباس کی عمدگی کا عالم یہ کہ اتنا عمدہ لباس اس کی زوجہ نے زندگی میں کبھی دیکھا نہ تھا۔ اس جماعت نے آ کر سلام کیا اور کہا اگر آپ کہیں تو آپ کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس کی بیوی نے اجازت دے دی۔ جب اس آنے والی جماعت نے گھر میں قدم رکھا تو ان کی خوشبو سے گھر مہکنے لگا۔ جناب اعلیٰ، جب کوئی نیک بنتا ہے نا، چاہے دنیا کو نظر آئے نہ آئے، مگر رب کعبہ اس کی دنیا اور آخرت کو سنبھال دیتا ہے۔ میرے پیارے نیک بنو، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ زندگی زندگی نہیں ہے، بلکہ حشر کے میدان میں یہ زندگی شرمندگی بن جائے گی۔ اپنے ایمان کو تازہ کرو، خدا را نمازیں پڑھو، دیندار بن جاؤ، ورنہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، قبر میں کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ یہ جو دوست ہمہ وقت آپ کو ادھر ادھر گھماتے ہیں، قبر میں یہ ساتھ نہیں جائیں گے، یہ مانو دولت ساتھ نہیں جائے گی۔ جن نمازوں کو تم نے ترک کر دیا وہی نمازیں قبر کو روشن کریں گی، حشر کو کامیاب بنا دیں گی۔ تو بولو نماز پڑھو گے کہ نہیں؟ زور سے بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ ادھر یہ دعا کر رہا تھا، ادھر وہ جماعت آنے کے بعد اس کی زوجہ سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس کی زوجہ نے پوچھا کس نے بھیجا ہے؟ تو آنے والی جماعت نے کہا تیرا شوہر جس کا غلام ہے، جس کا نوکر ہے، جس کا بندہ ہے، اس مالک نے ہم کو سلام کے ساتھ بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اور خالی نہیں آئے بلکہ ان کے ہاتھ میں تخت تھے، تخت کے اوپر کپڑے ڈھکے ہوئے تھے۔ جب پہلے تخت سے کپڑے کو ہٹایا تو سونا چاندی نظر آ رہا تھا۔ زور سے بولے، سونا چاندی نظر آ رہا تھا۔ اللہ اللہ، دوسرے تخت سے کپڑے کو ہٹایا تو طرح طرح کا لباس نظر آ رہا تھا۔ جب تیسرے تخت سے کپڑے کو ہٹایا نا، اللہ اکبر، تو طرح طرح کا کھانا نظر آیا۔ پیارے مسلمانوں، کبھی بھی بھوک سونے سے نہیں جاتی ہے، بھوک کبھی بھی اللہ اکبر لباس سے نہیں دور ہوتی ہے۔ اگر بھوک کو ختم کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ غذا ہے۔ جب اس کے بچوں نے طرح طرح کا کھانا دیکھا، سونے کی طرف غور نہ کیا، لباس کی طرف ایک نظر نہ دیکھا، بلکہ انہوں نے کھانا لیا اور کھانے کو کھانا شروع کر دیا، کھانے کو تناول کرنا شروع کر دیا۔ اس کا جو بڑا بیٹا تھا ہوشیار تھا، مچل کر کہتا ہے اے میری ماں، جب ہم مالدار تھے ہم نے بڑے بڑے عمدہ کھانے کھائے، مگر جو مزہ اس کھانے میں ہے، ایسی لذیذ غذا ہم نے آج تک نہ کھائی ہے۔ اللہ اکبر کہتا ہے اے ماں، اتنا عمدہ کھانا ہم نے آج تک نہیں کھایا ہے۔ ارے بچے کو معلوم کیا تھا، آج تک اس نے دنیا کا کھانا کھایا تھا، آج اللہ نے اس کے باپ کی دعاؤں کے صدقے میں غیب کے کھانے کا انتظام فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، جب بچوں کے شکم کی بھوک مٹ گئی، اللہ اللہ، تو بچے چین کی نیند سو گئے۔ اور آنے والی جماعت نے اس عورت سے کہا یہ سونا بھی تمہارے لیے ہے، یہ لباس بھی تمہارے لیے ہے، یہ چاندی بھی تمہارے لیے ہے۔ تو اس کی زوجہ نے کہا تھا پیارے یہ تو بتا دو 3 دن کی مزدوری اتنی کون دیتا ہے؟ تو آنے والی جماعت کے سرگنا نے کہا تھا، سپہ سالار نے کہا تھا اے عورت، کیا تیرے شوہر نے نہیں کہا تھا میں جس مالک کی مزدوری کر رہا ہوں جب وہ دے گا تو ہم سے سنبھالا نہ جائے گا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے جب وہ دینے پہ آتا ہے تو لینے والے سے سنبھالا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ سونا بھی ان کا ہوا، چاندی بھی ان کی۔ جب یہ جماعت واپس پلٹی تو مسکرا کر اس جماعت کے سردار نے کہا عورت تجھے بھی مبارک، تیرے شوہر کو مبارک، تیرے بچوں کو مبارک، تیرا شوہر جس کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے اس مالک نے تجھے، تیرے شوہر، تیرے بچوں کو سلام بھیجا ہے۔ زور سے بولیں۔ آج ہمارا عالم یہ اگر علاقے کے کوئی نیتا جی دور سے سلام کر دینا تو تمام گاؤں میں ڈھیڈورا پیٹ دیں گے فلاں نیتا سے ہماری بڑی بات ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اور ہر کسی کو حکومت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو ہمیں اگر کوئی دنیا دار سلام کہہ دے تو
जमाने में ढिंढोरा पीटे, कितना खुशकिस्मत होगा कि उससे परवरदिगार आलम ने सलाम भेजा। अल्लाह अकबर, ये असली कामयाबी है, इसको असली कामयाबी कहते। इधर घर में गुफ्तगू हो रही है, ये जमात की इजाजत लेके चली गई, उधर वो अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा है, मौला मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे, मेरे बच्चों को पर्दे गैब से खाने का इंतजाम फरमा दे। खुदा की कसम, जब इसका दिल दुआ से अल्लाह अल्लाह पूरी तरह मुकम्मल तौर पे सुकून में आ गया, इसको यूं लगा कि रब्बे काबा ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया है, तो ये अपने घर की जानिब चला। इसने अपने थैले का मुंह खोला, खोलने के बाद उसमें रेत को भरना शुरू कर दिया। तवज्जो चाहो, रेत को भरना शुरू कर दिया। और थैले को बंद करने के बाद दिल में सोचा, अगर मेरी सौजा पूछेगी ऐ मेरे शोहर क्या लाए हो, तो अपनी सौजा से कह दूंगा अनाज लाया हो, सुबह को बनाना, बच्चों को खिलाना, तू भी खाना। अल्लाह अकबर, दिल में सोचा अपनी सौजा को पहलाना मेरा काम है और सुबह तक रिज़्क़ का इंतजाम फरमाना मेरे अल्लाह का। इतना सोचा और सोचने के बाद अपने घर की जानिब चला। कदम साथ नहीं दे रहे कि सौजा का सामना कैसे करूंगा। 3 दिन हो गए, बच्चों ने कुछ नहीं खाया, बीवी ने कुछ नहीं खाया, सब्र किए जा रहे। जब ये अपने घर के दरवाजे पे गया, इसने घर के दरवाजे पे दस्तक दी, सौजा ने दरवाजा खोला और अपने शोहर को मुस्कुराकर सलाम किया। अल्लाह अल्लाह, जब ये घर में गया तो घर की काया पलट को देखकर हैरान रह गया। कहने लगा है मेरी सौजा, घर में ये इनकलाब कैसा आया? जब मैं गया था तो बच्चे रो रहे थे। ऐ मेरी सौजा, घर के अंदर ये इनकलाब कैसे पैदा हुआ? जब मैं आया हूँ तो बच्चे सुकून की नींद सो रहे हैं और तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तूने आसूदा होकर खाना खा लिया है। अल्लाह अकबर। इसकी सौजा ने कहा था ऐ मेरे शोहर, बातें बाद में होगी, पहले ये बताओ थैले में क्या लेकर आए हो? अब इसने थैले में रेत भरी थी। अल्लाह अल्लाह कहने लगा ऐ मेरी सौजा, मैं सुबह के लिए अनाज का इंतजाम करके लाया हूँ, सुबह को खाना बनाना, बच्चों को खिलाना। अल्लाह अकबर। मगर इसकी सौजा ने कहा ऐ मेरे शोहर, अगर अनाज लेकर आए हो तो दिखाओ तो सही। इसने कहा नहीं नहीं, सुबह को देख लेना, इसलिए कि थैले में अनाज नहीं डबल के रेत था। इसकी सौजा ने इशरार किया ऐ मेरे शोहर दिखा तो सही, आखिर थैले में लाया क्या है? ये इनकार कर रहा है। इसकी सौजा इशरार कर रही है, ये इनकार कर रहा है, सौजा इशरार कर रही है। जब इसने देखा कि अब सबके रास्ते बंद हो चुके हैं, अल्लाह की कसम ऐसे वक्त में जब तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे तो इसने अल्लाह को पुकारा और कहता है ऐ खालिक के कायनात, तेरी रहमतों पे भरोसा करना बंदे का काम था और मेरी इज्जत को बचाना तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत यही फर्क है इस बंदे में और हम में। हम सबसे अपना दुखड़ा रोते हैं। कितना अच्छा होता कि मस्जिद में जाते, नमाज पढ़ते और कहते मौला बीमार है, शिफा अता फरमा, परेशान है, परेशानी को दूर कर दे। तो रब की शान ये है जब वो सुनता है तो लोगों की किस्मतों को पलट कर बीमारों को शिफा दे देता है। इसकी सौजा ने कहा शोहर दिखाओ तो सही। कहता मौला भरम रखना मेरा काम था, इज्जत बचाना तेरा काम है। जब इसने थैले को अल्लाह अकबर अपनी सौजा के सामने खोला, हैरान शद्दर रह गया, उछल पड़ा। इसने क्या देखा कि इसने तो सहरा से रेत भरी थी, मगर रब्बे काबा ने रेत को सोना चांदी बना दिया है। कहने लगा कमाल हो गया, जब मैं सहरा से चला था तो मैंने इसमें रेत भरा था, मेरे अल्लाह ने सोना चांदी बना दिया है। इसकी सौजा ने मुस्कुरा कर कहा ऐ मेरे शोहर, जो तेरे साथ हुआ है बेशक तो कमाल है, मगर इससे बड़ा कमाल वो है जो मैंने और तेरे बच्चों ने देखा है। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह वाला कहता है ऐ मेरी सौजा, सोना चांदी रेत सोना चांदी बन गया, इससे बड़ा कमाल क्या होगा? रब्बे काबा ने रेत को सोने में तब्दील कर दिया, इससे बड़ा कमाल क्या होगा? तो इसकी सौजा ने कहा था ऐ मेरे शोहर, जब तू घर से गया हुआ था, जब तू अपने मालिक के पास गया था तो तेरे मालिक की तरफ से चंद लोग आए थे, उसने हमें सोना दिया था, उन्होंने हमें चांदी दी थी, उन्होंने हमें लिबास दिया था, उन्होंने हमें खाना दिया था और इनके चेहरों का आलम ये था कि इतने हसीन चेहरे हमने अपनी जिंदगी में कभी देखे न थे। समझ गया कि रब्बे काबा की बारगाह में सर को झुकाना मेरा काम था और मेरे बच्चों की जिंदगी को बदलना मेरे रब की रहमत का काम। इतना सुना, सोना चांदी का मालिक बन चुका था, लिबास फाकिरा मिल चुका था। हम तुम
होते ना तो जमीन और जायदाद खरीदते, हम तुम होते ना तो लोगों से कहते कि अमीर हो गए हो, अब देखूंगा कौन मेरे सामने आवाज निकालेगा। मगर अल्लाह वालों की शान अलग होती है। इसने मुसल्ले को बिछाया, सर को सजदे में रखा, कहने लगा मोला तेरी रहमतों का कोई जवाब नहीं, मैंने तो कतरा मांगा तो तूने मुझको समंदर के बराबर अता किया है। ऐ रब्बे काबा, तूने मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता फरमाया, मेरी ज़बान तेरे शुक्रिया से कासिर है, तेरे एहसान मंदी से कासिर है। अल्लाह अकबर, जानते हो ये अभी सजदे में पड़ा हुआ, सजदे में सर को रखे हुए रब्बे काबा की बारगाह में फरियाद कर रहा है कि इसकी ज़ौजा ने कहा, ऐ मेरे शोहर सुनो, वो जो जमात आई थी ना, उन्होंने कहा था कि ऐ ओ रसूल, तुझे तेरे शोहर को और तेरे बच्चों को तेरे शोहर के मालिक ने सलाम भेजा है। अल्लाह अकबर, जब इतना सुना तो इसकी चीख निकल गई और कहने लगा, रब्बे काबा, तूने सलाम भेज दिया है, मेरी जिंदगी कामयाब हो गई है। अल्लाह की कसम, हम समझते हैं जो ताजिर अच्छा हो वो कामयाब है, जिसका मकान उम्दा हो वो कामयाब है, मगर याद रखो सबसे बड़ा कामयाब वो है जिसने दुनिया में रहकर अपने परवरदिगार आलम को राजी कर। याद रखो, कोई कितना भी बड़ा सरमाएदार हो, अगर अल्लाह राजी नहीं तो फिर वो कामयाब नहीं। कोई कितना भी बड़ा अमीर हो, अगर अल्लाह राजी नहीं तो वो कामयाब नहीं है। और याद रखो, जो लोग नमाज छोड़ते हैं तो समझो कि परवरदिगार आलम से नाराज हो गया। हर बेनमाजी इस बात को सुने, आज मोमिनों ने, मुसलमानों ने मजहब इस्लाम को मजाक बना, मजहब इस्लाम के मुताबिक चलना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, और उम्मीदें कितनी बड़ी बड़ी है कि अल्लाह हश्र के मैदान में हमको जन्नत अता फरमाए। अरे जिस कौम की बेटे का आलम ये हो कि वो सर पे दुपट्टा रखने तैयार नहीं, वो कौम ये कहती है कि हम बड़े इज्जत वाले हैं। जो इंसान एक वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ने तैयार है, वो ये कहता है कि मैं कामयाब हो गया। खुदा की कसम, कामयाब तो वो है कि जब तक जिंदा रहा अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से उसने तब रखा। असली कामयाब वो है, असली कामयाब ये बंदा है कहने लगा, मौला तूने मुझे सलाम भेज दिया है, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है, या रब्बे काबा अपना कुर्ब अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह की जबान से ये जुमले निकले थे, रब्बे काबा ने इसकी दुआ को कबूल किया और हजरत मलकुल मौत से कहा, ऐ मौत के फरिश्ते जाओ और हमारे प्यारे के, हमारे वली की रूह को जरा प्यार से कब्ज करके लाना। अल्लाह अकबर, हजरत मलकुल मौत आते हैं, इसकी रूह को कब्ज करते हैं। जब इसकी रूह कब्ज उनसरी से परवाज करती है तो खुदा की कसम, इसकी अजमतों का आलम ये था, जिस घर में रहता था उस घर ने इसको सलाम किया, इसलिए कि अल्लाह का वली जा रहा है। अल्लाह अल्लाह कुरान बहिश्त ने इसको सलाम किया तो पता चल गया प्यारे, उनका मकान बनाने का नाम कामयाबी नहीं है, अच्छे अच्छे तिजारत करने का नाम कामयाबी नहीं है, उनका लिबास पहनने का नाम कामयाबी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा कामयाब वो है जिसने अपने परवरदिगार को राजी कर लिया। जमाने के सामने उसने अपनी जिंदगी से यही पैगाम पहुंचाया कि दुनिया वालों, अगर तुम्हें जीना है तो इबादत गुजार बन के जियो, इसलिए कि जो जितना इबादत गुजार होता है वो इतना अल्लाह के करीब होता है, और जो जितना अल्लाह के करीब होता है परवरदिगार आलम उसको दुनिया और आखिरत में इतना ही कामयाब बना देता। मगर प्यारे, हमारा आलम तो ये है कि अगर कोई नमाज पढ़ने की दावत दे देना तो हमारे चेहरे की रौनक खत्म हो जाती। आज मुसलमानों का आलम की कोई नमाज पढ़ने कह दे तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, कोई ऐप गिना दे तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। जबकि हजरत अली फरमाते, लोगों तुम्हारा दोस्त वो नहीं है जो मुंह पे तुम्हारी तारीफ करे, तुम बड़े अच्छे हो, बड़े अमीर हो, बड़े काबिल हो, बड़े कामयाब हो। हजरत अली फरमाते, तुम्हारा सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हारे सामने तुम्हारी कमियों को बयान, इसलिए कि कमियां सामने आएंगी तभी तो कमियों को दूर करेगा। चापलूस कभी दोस्त नहीं हो सकता, तारीफें करने वाला कभी दोस्त नहीं हो सकता। सच्चा दोस्त वो है जो खुद भी दीनदार हो और अपने दोस्तों को भी दीनदार बना दे। सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात मैं आपके सामने बयान करूंगा।
खुदा की कसम हमने मजहब इस्लाम को समझकर पढ़कर उस पर जिंदगी गुजारी नहीं है, वरना हमारे घरों का ये हाल होता कि एक एक घर में 10-10 लोग बीमार हैं, एक एक घर में अल्लाह अकबर रहने वाले तो 10-10 हैं, मगर नमाज पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आता। घर में कुरान तो रखे हैं मगर कुरान को पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आता। जबकि मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बरकतें हो तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है अल्लाह के फरिश्तों का उस घर में नुज़ूल होता है। अल्लाह अल्लाह आओ मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करूं, एक नसीहत आपके सामने पेश करूं। खुदा की कसम सुन लीजिए, जानते हो आज तो हमने कमाने को अपनी जिंदगी का मकसद बना दिया, मगर याद रखो इस दुनिया में अल्लाह ने ऐसे ऐसे बंदे भी भेजे हैं कि जब दुनिया ने उनकी इबादत को देखा तो पुकार उठी, जब नबी की उम्मती का आलम ये है तो मदीने के ताजदार का आलम। अल्लाह पर एक शख्स बाजार में गया और जाने के बाद उसने गुलाम खरीदा। वो उम्दा उम्दा गुलाम देखे, हसीन भी, ताकतवर भी, काम करने वाले भी, मगर इसको कोई भी गुलाम पसंद नहीं आया। इसकी नजर बाजार में गुलाम पर पड़ी। जब इसने उस गुलाम को देखा तो इसने दिल में इरादा किया, कीमत चाहे कुछ भी हो मगर मैं इस गुलाम को जरूर खरीदूंगा। सुभान अल्लाह। उसके आका के पास गया, वो जाने के बाद कहते क्या तुम अपने गुलाम को बेचना पसंद करोगे? तो उसके आका ने कहा, प्यारे मैं तुझे बेच तो दूंगा मगर तू मुझे कोई भला आदमी लगता है। मेरा ये जो गुलाम है ना ये बड़ा बदतमीज गुलाम है, अगर इससे दिन में कितना भी काम करा लो मगर जब रात होती है तो काम नहीं करता है बल्कि कमरे में बंद होके बैठ जाता है। प्यारे अगर खरीदना है तो इसको ना खरीद, बल्कि मेरे पास उम्दा उम्दा गुलाम है उनको खरीद ले। मगर इसने मालिक सुनो, अगर मैं गुलाम खरीदूंगा ना तो इसी गुलाम को खरीदूंगा चाहे ये कितना भी काम चोर हो। अल्लाह अल्लाह। जब दोनों में ये गुफ्तगू चल रही थी तो वो गुलाम कहने लगा, ओ खरीदने वाले, खरीदना तो चाहता है मगर याद रख मैं तेरी बारगाह में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। खरीदने वाले ने कहा, कह तो सही क्या कहना चाहता है? तो उसने कहा, अगर तू मुझे खरीदना चाहता है तो मेरी 3 शर्तें हैं, अगर तू 3 शर्तों को पूरा कर देगा तो शौक से खरीद लेना, वरना तू मुझे खरीदेगा तो खसारे में रहेगा, नुकसान में रहेगा। उस बंदे ने कहा, मैंने दिल में इरादा कर लिया है चाहे तेरी जो कीमत हो मैं तुझे ही खरीदूंगा। अरे उसको मालूम क्या था, जब ये उस गुलाम को खरीदेगा तो परवरदिगार आलम उसके नसीब को बुलंद फरमा। इसलिए कि ये गुलाम सिर्फ गुलाम नहीं था बल्कि दिनों रात ये अल्लाह की इबादत करता, याद खुदा से अपनी ज़बान को तर रखता था। उसने कहा, मेरी 3 शर्तें अगर खरीदना चाहते हो, पहली शर्त ये, जब नमाज का वक्त हो जाएगा तो तुम मुझे नमाज पढ़ने से नहीं रोकोगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आज तो दावत दी जाए तब भी मुसलमान नमाज पढ़ने तक जा रहे, कितना अच्छा होगा गुलाम था मगर नमाजी था। और कहा, सुनो, नमाज का वक्त हो तो नमाज से नहीं रोकोगे, तुम दिन में चाहे कितने भी काम लेना मगर रात में मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। इसलिए कि मैं रात में अपने उस मालिक का काम करता हूं जो मेरे जिस्म का मालिक है, और रात में मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं जो मेरे जिस्म और मेरे दिल का मालिक है। सुभान अल्लाह। उसने कहा, मैं जिस कमरे में रहूंगा मेरे कमरे में बाद मगरिब कोई दाखिल नहीं होगा, कोई आने की कोशिश नहीं करेगा। इसने कहा, मुझे तेरी 3 शर्तें कबूल हैं, कितना अच्छा होगा तू मेरे घर में नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह घर में बरकतें अता फरमाएगा। इसने इस गुलाम को खरीद लिया, अपने घर ले जाकर कहा, ऐ गुलाम, मेरे घर में तुझे जो सा भी कमरा पसंद आए ना उस कमरे को पसंद कर ले, चाहे जो कमरा ले ले। अल्लाह अकबर। गुलाम ने कालीन बिछा कमरा ना लिया, गुलाम ने रंग हुआ कमरा ना लिया, बल्कि पोसीदा टूटे फूटे कमरे को कबूल कर लिया। उसके आका ने कहा, अगर तू चाहता तो उम्रा कमरा मुतअज्जल कर लेता, मगर तूने टूटे फूटे कमरे को जो अपने लिए मुंतखब किया है। तो इस गुलाम ने कहा था, ऐ
میرے آقا تو جسے ٹوٹا پھوٹا کمرہ کہہ رہا ہے وہ میرے اللہ کے نزدیک چمن ہے. اللہ اکبر. یہ غلام اس کے گھر رہنے لگا. ظہر کی اذان ہوتی کام چھوڑ دیتا, پہلے ظہر کی نماز پڑھتا, عصر کی نماز کا وقت ہوتا کام چھوڑ دیتا, پہلے یہ عصر کی نماز پڑھتا, بعد وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا. اللہ اکبر. جب مغرب کا وقت ہو جاتا نا دن بھر یہ کام کرتا, مالک کا گھر بھی صاف کرتا, مالک کے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتا, مالک کو ہر طرح سے خوش رکھتا. مگر مغرب کی اذان ہو جاتی, مختصر سا کھانا کھاتا اور وہ کمرہ اس نے پسند کیا تھا اس کمرے میں داخل ہو جاتا اور راتوں رات یہ اللہ کی عبادت کرتا. ایک دن اس کے آقا کے دل میں خیال آیا میں بھی تو جا کر دیکھوں آخر میرا یہ غلام راتوں رات اپنے کمرے پہ کرتا کیا ہے, آخر رات میں اس کا مشغلہ کیا ہے. اللہ اللہ. جب یہ اس کے کمرے کے دروازے پر گیا تو اس نے کیا دیکھا, اس کے کمرے کی چھت کٹی ہوئی ہے اور آسمان سے ایک قندیل معلق ہے جو اس کے تمام کمرے کو روشن کر رہی ہے. رب کعبہ نے آسمان سے اس کی عبادت کے لیے اس کے کمرے کو روشن کر دیا ہے. اللہ کی قسم یہ بندہ رات میں سجدے میں رب کعبہ کے سامنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اللہ اکبر اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے اے میرے مولا تو رحیم ہے, تو کریم ہے, پروردگار عالم تو نے مجھے کسی کا غلام بنا دیا ہے, اس میں میری کچھ نہ کچھ مصلحت ہے مولا. اگر میں آزاد ہوگا تو کسی کی خدمت نہ کرتا بلکہ دنوں رات تیری عبادت کرتا. یا رب کعبہ دنوں رات میں تجھے سجدے کرتا. اللہ اکبر. ساروں کا رو رہا ہے کہتا اے میرے مولا اے پروردگار عالم میں جو بھی تیری بارگاہ میں عبادت کرتا ہوں اگرچہ ٹوٹی پھوٹی ہے مگر مولا میری عبادت کو قبول کر دینا. اے مولا میں جانتا ہوں میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے جو تیرے پاک نام کو پکارے, مگر مولا جیسی بھی ہے اس زبان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دینا. کہتا ہے مولا میرے سجدوں میں اتنا شوق و شوق نہیں ہے جو تیری بارگاہ کے لائق بن جائے, مگر تجھے تیرے کرم کا واسطہ میرے سجدوں کو قبول کر دینا. اور کہتا ہے مولا میں جس کے گھر میں رہ رہا ہوں نا وہ انسان بڑا پیارا ہے, وہ انسان بڑا اچھا ہے, میرے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے, 5